Good morning. Welcome to your channel Science by Milan Agrawal. So in today's class we are going to discuss about the coordinate bond. What is the meaning of coordinate bond? First we will see the definition. What is the meaning of coordinate bond? So coordinate bond means it is formed by coordinate bond is formed by sharing of electrons but देखो हमने कोवेलेंट बॉन्ड में भी बोला था कि इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ भी हम बोल रहे हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन अंतर क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड में हमने बोला था शेयरिंग मतलब जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में शेयरिंग हो रहा है, तो दोनों के पास अपने इलेक्ट्रॉन्स है, बोथ आर हैविंग देयर ओन इलेक्ट्रॉन्स and both participate in the sharing, both are involving their electrons in the sharing. This is covalent bond. But in coordinate bond, what is the main difference? In coordinate bond, the sharing of electron in the electrons are shared by only one atom, है ना? एक एटम जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन रिच है तो वो ही शेयर करेगा, बाकी दूसरा केवल पार्टिसिपेट करेगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा. अभी हम एग्जांपल्स भी देखेंगे. सो द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स in which both the electrons shared is contributed by only one atom. Whereas other atom will only participate in the sharing, will only participate in the sharing. सीधा सा मतलब है कि दो एटम्स के बीच में शेयरिंग हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है. इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय टू एटम्स, बट द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो शेयर कर रहे हैं वो दोनों कर रहे हैं, बट इलेक्ट्रॉन जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो केवल कोई एक एटम कंट्रीब्यूट करेगा. लाइक we will see a simple example of ammonium molecule NH4 plus ammonium molecule, ammonium ion. Before we discuss about the covalent bond, two terms we have to clear out about bond pair and lone pair, bond pair of electrons and lone pairs of electrons. So this is the definition. If you want to take a screenshot, so take it. Once again I am repeating the definition. The bond which is formed between two atoms by sharing of electrons, but the contribution of electron is done by only one atom. Another atom will only take place, will only participate in the sharing. It will not contribute its electron. दूसरे वाले के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो केवल पहले वाले का शेयर कर रहा है, उसके पास उसका खुद का इलेक्ट्रॉन नहीं है शेयर करने के लिए. This is the major difference between coordinate and covalent bond. कोवेलेंट बॉन्ड में भी हमने कहा था शेयरिंग हो रही है, कोऑर्डिनेट में भी हम बोल रहे हैं शेयरिंग हो रही है. देन व्हाट इज द मेजर डिफरेंस? कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों एटम्स के पास अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक ही एटम के पास इलेक्ट्रॉन होता है बट शेयर दोनों करते हैं. It will be more clear for these examples that we are going to discuss. First,
दो टर्म्स में क्लियर करना चाहती हूँ आपको, दैट इज बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर? लेट अस टेक अ सिंपल एग्जांपल ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल. अमोनिया NH3, ये हमने कोवेलेंट बॉन्ड में देखा था. सी, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 2 5, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 5. Both are non-metals, so they will share electrons. One nitrogen is having 3 hydrogen atoms, so one nitrogen we will arrange hydrogen like this. 1 electrons each hydrogen atom is having. In nitrogen 5 electrons are having with valence electron. 5 है उसके पास, तो 3 we will make it here to share with hydrogen, और 2 जो है वो हम यहाँ बना देते हैं. Right, this is the Lewis structure or electron dot structure of ammonia. Now if you will show the sharing of electrons, so this is the sharing of hydrogen. This electron will share with this hydrogen and it will be shared with this one, and the whole nitrogen will share the electrons like this. So this is the atomic structure of ammonia. See, now two types of electron pairs are here, bond pair and lone pair. So what is the meaning of bond pair? Bond pair of electrons वो pair हैं which are participating in the sharing. See, these are participating, these are participating, these are participating. ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं. सो जो इलेक्ट्रॉन पेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं शेयरिंग में वो होते हैं आपके बॉन्ड पेयर. सो बॉन्ड पेयर क्या हो गए? दोज इलेक्ट्रॉन्स, दोज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच पार्टिसिपेट इन शेयरिंग आर विच आर इन्वॉल्व इन शेयरिंग. ठीक है, जो शेयरिंग कर रहे हैं. तो यदि कोई पूछेगा कि इन अमोनिया मॉलिक्यूल हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स आर प्रेजेंट, हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स आर प्रेजेंट, सो 1 2 and 3, 3 bond pairs are present here, 3 bond pairs are present. And see, this one more pair is there which is not participating in sharing. So this pair of electron is known as lone pair of electron. The pair of electron which is not participating in sharing. शेयरिंग में पार्टिसिपेट जो नहीं कर रहा है, इट इज नोन एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो इन अमोनिया मॉलिक्यूल हाउ मच लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट? ओनली 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट. सो दिस शुड बी क्लियर इन योर माइंड बिफोर discussing about this coordinate bond, bond pair and lone pair. फिर से बॉन्ड पेयर कौन से होते हैं? बॉन्ड पेयर वो होते हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं शेयरिंग में, लाइक दिस, जो शेयरिंग कर रहे हैं, ये बॉन्ड पेयर हो गए. ठीक है, 1 2 3 बॉन्ड पेयर है यहाँ पर. लोन पेयर कौन हो गया? लोन पेयर वो हो गया वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, अलग से रखा हुआ है, लोनली अलग से रखा हुआ है. सो दिस इज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. 1 पेयर ऑफ लोन पेयर इज प्रेजेंट इन द अमोनियम. सो आई थिंक इट इज क्लियर, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर. इससे ही हम आगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझते हैं. देखो यहाँ पर इस अमोनिया के पास ये वाला जो एक लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया है ना, इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा हो गए, रिच इलेक्ट्रॉन हो गया क्योंकि एक लोन पेयर इसके पास प्रेजेंट है. अब यदि कोई ऐसा एक एटम आ जाता है जिसके पास कुछ भी नहीं है ना, देने के लिए कुछ नहीं है, शेयर करने के लिए कुछ नहीं है, तो इन दैट केस ये जो लोन पेयर है वो ये जो अमोनिया मॉलिक्यूल है उसके साथ क्या कर लेता है? शेयर कर लेता है. देखो एक एग्जांपल देखते हैं हम. इसको एज इट इज बने रहने देते हैं, इसी में हम एग्जांपल ऐड कर लेते हैं. अमोनियम NH4+, अमोनियम आयन का. अमोनिया और अमोनियम है ना, ये अमोनिया है, अमोनिया, एंड दिस इज अमोनियम.
ये आपका मॉलिक्यूल है, ये आयन है, चार्ज लग गया इधर, दिस चार्ज, ड्यू टू दिस चार्ज इट इज नोन एज आयन। अमोनियम मॉलिक्यूल जो है आपका ये शो करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहां पर हमने देखा कोवेलेंट बॉन्ड, बट इन अमोनियम वी विल सी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, नाउ सी। जैसे ये हमारा अमोनिया का स्ट्रक्चर है, इसको हम एक बार इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका। See here, this is the lone pair of electron. If any hydrogen ion comes here, प्रोटॉन भी बोल सकते हैं इसको, कोई हाइड्रोजन आयन आया, देखो H प्लस, H और H प्लस क्या अंतर है? H मतलब हाइड्रोजन एटम विच इज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हाइड्रोजन मतलब उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन H प्लस आ गया है, मतलब दिस 1 इलेक्ट्रॉन इज ऑलरेडी डोनेटेड, कुछ भी नहीं है इसके पास। H प्लस बोला मतलब नो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन था, एक प्लस चार्ज लगा हुआ है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर दिया। सो हाइड्रोजन आयन यदि यहाँ पर आता है, फर्स्ट शेल है हाइड्रोजन की, 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट इज रिक्वायरिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो इफ दिस नाइट्रोजन शेयर दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स विद दिस हाइड्रोजन, सो इसका भी शेल कंप्लीट हो जाएगा। और ये तो शेयरिंग बोल रहे हैं, तो ये दो तो इसके साथ काउंटिंग ऑलरेडी हो रहा है। सो दिस इज द टाइप ऑफ अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं ना, इसके पास कुछ नहीं है लेकिन इसके पास है, तो ये जो इसके पास है लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड पेयर नहीं पार्टिसिपेट करेंगे कोऑर्डिनेशन में। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जो है, लोन पेयर जो है, दैट विल ओनली पार्टिसिपेट। सो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके भी यूज में आ रहा है, तो क्या बुराई है। सो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर हो रहे हैं, यहाँ पर भी 2 की गिनती हो गई, इसके पास ऑलरेडी 8 है। सो दिस इज द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको हम बोलेंगे, ये जो नाइट्रोजन है इसको हम डोनर बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहा है बट फिर भी इसके इलेक्ट्रॉन है जो पार्टिसिपेशन करवा रहा है, इसलिए दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डोनर, एंड दिस हाइड्रोजन वी कैन कॉल इट एक्सेप्टर, डोनर एंड एक्सेप्टर। एंड हाउ वी विल शो, जैसे हमने कोवेलेंट बॉन्ड में सिंपल छोटी छोटी लाइन से डिनोट करा था, सिंगल कोवेलेंट में सिंगल लाइन, डबल कोवेलेंट में 2 लाइन, ट्रिपल कोवेलेंट में 3 लाइन। तो देखो यहाँ पर 3 तो आपके सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, सो यहाँ हम इसको इस तरह से शो कर देंगे, बट यहाँ पर इस नाइट्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम शो करने के लिए कैसे शो करेंगे, we will show it indicate by this arrow, ऐसा एरो बनाएंगे, मतलब ये जो एरो आपने बनाया है, ये वाला एरो, ये इंडिकेट कर रहा है कि नाइट्रोजन डोनर है, हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, हाइड्रोजन की तरफ एरो है ना, हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, और यहाँ पर आपका इस तरह से कोऑर्डिनेशन हो रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। सो ये आपका एग्जांपल है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, इस तरह से कोऑर्डिनेशन होता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनर होता है पेयर का और दूसरा उसको एक्सेप्ट करता है, शेयरिंग हो रहा है। यहाँ पर डोनेशन और एक्सेप्टर मतलब आयनिक बॉन्ड नहीं बन रहा है, क्योंकि पूरी तरह से इसने डोनेट नहीं किया है, केवल शेयरिंग हो रहा है। सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। See, in ammonium ion, how we can write it properly, this is the proper way of representing any coordinate bond. This is the representation of ammonium ion, ammonium ion proper represent करेंगे। पहले या तो हम इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक इन लुईस स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पर देखो ये अमोनिया है, हमारा NH3 था, ये इसमें हमने बताया कि ये 1 पेयर, ये 1 पेयर, ये 3 पेयर, ये 3 पेयर, ठीक है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन और आएगा, 3 हाइड्रोजन के साथ में 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, और दिस इज द लोन पेयर। यहाँ पर इसको बता रहे लोन पेयर, तो हाइड्रोजन इधर बना, यहाँ पर हाइड्रोजन बना।
This is 3 bond pairs and this is 1 lone pair. This 1 lone pair is shared by this hydrogen ion. So this is the electron donor, this is the electron acceptor. Now if you want to draw the atomic structure, तो atomic structure इस तरह से बनेगा, क्योंकि यहाँ पर भी शेयरिंग हो रहा है, तो ये वाले हाइड्रोजन के साथ भी जैसे हम कोवेलेंट में बताते हैं उसी तरह से हमको बनाना पड़ेगा. एटॉमिक स्ट्रक्चर उसका इस तरह से ही ड्रॉ होगा. बट इन लुईस स्ट्रक्चर हम यहाँ पर इस तरह से एरो से इंडिकेट करेंगे कि नाइट्रोजन डोनर है और हाइड्रोजन एक्सेप्टर है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग इन अमोनियम आयन. लेट अस सी वन मोर एग्जांपल. वेरी कॉमनली यूज्ड एग्जांपल इज हाइड्रोनियम आयन. हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम मतलब होता है H3O, जो वाटर मॉलिक्यूल है हमारा H2O. H2O is our water molecule. If it gains one more hydrogen ion, so it forms H3O plus. H3O plus. This is hydronium ion. हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, है ना. वाटर है. सी सिंपल एक रिएक्शन देखते हैं. इफ वाटर रिएक्ट्स विथ HCl, वाटर यदि HCl के साथ रिएक्ट करता है तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, यहाँ पर H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक होंगे. दिस हाइड्रोजन आयन will be accepted by this and it will form a hydronium ion. So we will see here how this hydronium ion will be formed by coordination or coordinate bond. First we will see the formation of water molecule. In water molecule, two atoms are there. Oxygen, atomic number 8, configuration 2,6, and hydrogen, atomic number 1, configuration is 1. So water जो है, water आपका covalent bond बनाता है. First we will see how covalent bond it will form. So this is oxygen, two hydrogens are there. So हम कहीं पर भी 2 हाइड्रोजन लगा लेते हैं, ऐसे लगा लेते हैं. 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करने हैं हमको ऑक्सीजन के फॉर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. सो 1 2 3 4 5 6. This is shared, this one is shared with this hydrogen, and this is the atomic structure of water molecule. Okay. Now see, 2 bond pairs are there and 2 lone pairs are there. 2 bond pair है, 2 lone pair है. So if any protons comes in the contact with it, so it will definitely share its lone pair. ठीक है, कोई भी प्रोटॉन आता है इसके कांटेक्ट में, कोई डोनर मिल जाता है प्रोटॉन का, so obviously it will share the electrons with the proton. यहाँ पर suppose if any hydrogen ion comes in contact with this water molecule, so definitely this lone pair can be shared with this. ठीक है, अभी हम ये ऑर्बिटल स्ट्रक्चर हटा के सिंपल डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं. These 2 lone pairs are there. 2 lone pair है, डार्क करके इंडिकेट कर देते हैं. So it requires only 1 lone pair. So this lone pair can be shared with this hydrogen ion. So how it will form the bond? See, oxygen, single bond with hydrogen, single bond with hydrogen, and 1 coordinate bond with another hydrogen, and still 1 extra lone pair is there. ठीक है, ये वाला लोन पेयर एज इट इज यहाँ पर आ गया. ये वाला एक जो लोन पेयर था वो हाइड्रोजन के साथ शेयर हो गया है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया है. और ये दो तो ऑलरेडी उसके कोवेलेंट बॉन्ड थे. सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन H3O+. So this is also an example of coordinate bond. If you want to draw the atomic structure of this hydronium ion, हाइड्रोनियम आयन का एटॉमिक स्ट्रक्चर यदि आपको बनाना है तो किस तरह से बनेगा? 3 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन. सो सपोज
oxygen, hydrogen, here one covalent bond, here with one more hydrogen one covalent bond, और एक हाइड्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट बना रहे हैं तो वो भी हम जो है इस तरह से ही शो करते हैं. एंड स्टिल ऑक्सीजन इज हैविंग वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो वो लोन पेयर आप बाहर बना दीजिए. सो दिस इज द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोनियम आयन. बहुत सिंपल सी चीज है. एक चीज माइंड में क्लियर रखनी है आपको बस, कि जो है कोवेलेंट बॉन्ड में both the atoms are having electrons to share, but in coordinate bond only one atom is having the electron to share. This is the major difference. So I think it is clear now. Coordinate bond is clear to you. So now coordinate bond is clear to all, I think. Now two questions arises in the mind. If two questions, so we will answer that two questions ki why the size of cation is smaller than its original atom. And second question, why the size of anion is larger or bigger than its atom. दो क्वेश्चन है. केटायन का साइज एटम से स्मॉल क्यों होता है और एनायन का साइज एटम से छोटा क्यों बड़ा क्यों होता है. लेट अस एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल. लाइक सोडियम एटम की बात यदि हम करें, सोडियम एटम, ठीक है, 11 एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन इज 281, ठीक है, 3 शेल्स इट इज हैविंग KLNM. यदि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करें इसका सोडियम का, सो दिस इज फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन, दिस इज सेकेंड शेल 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज थर्ड शेल 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, KLM. अब if this 1 electron is donated by sodium, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन यदि डोनेट कर दिया, so it will gain 1 पॉजिटिव चार्ज. एटॉमिक नंबर तो 11 ही रहेगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया तो कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा 28. व्हाट विल बी द कॉन्फ़िगरेशन? 28. देखो एक शेल ही गायब हो गई, यहाँ पर 3 शेल थी, वहां पर 2 शेल बची, K and L, only 2 shell is there. Okay, so obviously ये यदि फर्स्ट शेल हम बनाए 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल बनाई 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, सो ऑब्वियसली साइज जो है छोटा ही होगा ना, शेल ही कम हो गई, नंबर ऑफ शेल मोर, सो साइज इज मोर. Here one shell is decreased, that's why cation का साइज हमेशा कैसा हो जाएगा, एटम से छोटा हो जाएगा. On the other hand, if we talk about the anion is gaining of electron. Suppose we are talking for chlorine, atomic number 17, electronic configuration 287, shell कितनी रहेगी, 3 shell, 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में, सेकेंड में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, एंड इन थर्ड शेल 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन. ओके, नाउ टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन, है ना, इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन. सो क्लोराइड आयन माइनस चार्ज लग जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करा तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया 288. 288. अब यहाँ देखो नंबर ऑफ शेल तो सेम है, ठीक है, नंबर ऑफ शेल सेम है, लेकिन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने के कारण क्या होगा, उसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है. सो ड्यू टू गेन ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन द साइज ऑफ एनायन इज इंक्रीज्ड. सो दिस इज द मेन रीजन, केटायन का साइज छोटा हो जाएगा एक्चुअल एटम से, एंड एनायन का साइज जो है
स्लाइटली लार्जर हो जाएगा उसके एक्चुअल एटम से. So this is all about the coordinate bond. I hope you have understand the topic. So please do watch these videos. Thank you very much for watching this video. Please do subscribe the channel for all the notifications of the videos. You will get here all the topics from 9th, actually for 9th, 10th, and some topics can be covered for 11th, 12th also. So thank you guys. Thank you very much. Thank you.